God's word. हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे। Sunday mornings I have been teaching on the subject long life is God's will for you. और हर रविवार मैं सिखा रहा हूँ आपकी खुदा की इच्छा है कि आपके लिए लंबी आयु दीर्घ आयु है बोल के। I'll continue with my teaching. और ये मेरी बोधना मैं आगे बढ़ाता हूँ। But every month, first morning, 6 o'clock, we gather here to worship. परंतु हम हर महीना सुबह 6 बजे और हम लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं खुदा की वायदा के लिए। Every month we come here to worship and receive the promise of God. हर महीना पहला तारीख को हम लोग आके आराधना करते हैं और खुदा के जरिए हम वायदा को पा लेते हैं। But since today Sunday is itself is a first, I'll be teaching the long life series, but I'll also share one promise which you can meditate for the whole month. And 1 month is not enough for the scripture. That promise all through your life you can meditate. और मैं आज जो बोधना मेरा जो दीर्घ आयु के बारे में जो बोधना है वही मैं आगे लेके जाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको एक वायदा आज मैं देता हूँ। वो वायदा खाली ये महीने के लिए नहीं होता है, वो वायदा आप जब तक है तब तक वो आपको वायदा सहायता करता है। That's the one scripture it changed my prayer life. और वो एक वचन मेरी प्रार्थना का जीवन ही बदल चुका है। Hallelujah. हालेलुया। Now what we have learned on long life. और दीर्घ आयु के बारे में हम क्या सीखे हैं? Bible says God will satisfy you with long life. बाइबल कहता है खुदा ने हमको दीर्घ आयु से हमको तृप्त करेगा बोल के। Hallelujah. हालेलुया। Everybody is afraid about third wave now. अभी सब लोग ये तीसरा जो वेव के बारे में सब लोग घबरा चुके हैं। I'm happy government is working, preparing themselves for third wave. और मैं खुश हूं कि सरकार जो थर्ड ये तीसरा वेव के लिए वो लोग जो सिद्धता कर ले रहे हैं। But church should get ready. लेकिन कलीसिया वहां पे सिद्धता होना चाहिए। How we can prepare ourselves? अपने आप को हम कैसा तैयार होना पड़ेगा? The word of God, the truth of God's word is a shield and buckler for you. और ये परमेश्वर का वचन, ये जो वचन है ये आपके लिए वो संभालने का एक वहां पे एक गुराने और केड है। This word of God will protect you. और ये वचन आपको वहां पे रक्षा करेगा, सुरक्षित में रखेगा। Hallelujah. हालेलुया। My Father will satisfy you with long life. और मेरे पिता आपको दीर्घ आयु से वो तृप्त करेगा। Bible says you will live more than 120 years. बाइबल कहता है आप 120 साल से भी ज्यादा जी सकते हैं बोल के। Hallelujah. हालेलुया। Say in English, my Father will satisfy me with long life. I will live more than 120 years. मेरे पिता मुझे दीर्घ आयु से तृप्त करेगा, मैं 120 साल से ज्यादा मैं जीता हूं। There are some promises about long life which comes with condition. और कई वायदा वो शर्त के द्वारा आता है। It is good condition, we can fulfill it. और ये शर्त अच्छा है कि हम लोग पूरा करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। It says when you worship, God blesses your food and water. वहां पे कहता है कब आप खुदा की आराधना करते हैं तो आपका अन्न और जल पर आशीष आएगा। When you read the word, everything will go well with you. और कब आप बाइबल पढ़ेंगे आपके साथ सब कुछ अच्छा होएगा। So if you worship and read the word, you will have a long life. अगर आप आराधना करके आप वचन पढ़े तो आपको दीर्घ आयु है। When you honor your parents, you will have a long life. आपके माता पिता का आदर करे तो आपको दीर्घ आयु है। Very good it is. ये अच्छा है बहुत। Say after me. As we worship as a family, my Father blesses the food and water, removes the sickness away from us. No one will have a miscarriage in my family. No one will be barren in my family. Everyone will have a long life. मैं पारिवारिक होके खुदा की आराधना करूंगा। वो मेरे अन्न और जल पर आशीष देगा।
और मेरे से बीमारी को दूर निकालेगा और मेरे घर में कोई भी बांझ नहीं रहेंगे और हम सभी लोग दीर्घ आयु से तृप्त होते हैं। Amen. Say after me one more scripture. As I read the word and obey the word of God, everything will go well with me. Everything will go well with my children. And we will have long life. कब मैं परमेश्वर का वचन पढ़ के वैसा ही चलता हूं तो मुझे अच्छा होएगा और मेरे बच्चे के साथ सब कुछ अच्छा होएगा और हमको लंबी उम्र रहेगा। Hallelujah. हालेलुया। One more promise. और एक वायदा, As I honor the Lord, sorry. As I honor my father and mother, everything will go well with me. And we will have long life. जब मैं माता पिता का आदर करता हूं तो मेरे साथ सब कुछ अच्छा होएगा, मैं दीर्घ आयु से तृप्त होऊंगा। See, these three promises comes with condition. और ये तीन वायदे ये शर्त के जरिए आता है। It is good condition. We should do it. और ये शर्त अच्छा है, आपको ये करना है। There is one more promise. और एक वायदा है, You will have a long life by the grace of God. और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आपको दीर्घ आयु रहता है। Because Christ has redeemed you from the curse of the law, you will have a long life. क्योंकि यीशु मसीह ने आपको व्यवस्था के शापों से छुड़ाया है, इसलिए आपको दीर्घ आयु रहता है। You will have a healthy life. और आपको तंदुरुस्ती का जीवन रहता है। Amen. Say this after me. My Christ has redeemed me from the curse of the law. I will have a long life and healthy life. मेरा मसीह मुझे व्यवस्था के शापों से छुड़ाया है, मुझे दीर्घ आयु रहेगा और तंदुरुस्ती का जीवन जीऊंगा। So I am teaching this now. That last one I am teaching. और मैं यही सिखा रहा हूं और आखिरी का मैं सिखा रहा हूं। The first three promises are good. You have to practice. पहला जो तीन जो वायदा है आप लोग काम में लाइए, वो बहुत ही अच्छा है आपके लिए। Now you have a good health. You will have a long life because Jesus died on the cross for you. आपको दीर्घ आयु रहेगा, तंदुरुस्ती रहेगा, क्योंकि आपके लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर मरा है। For your health, my Jesus died on the cross. आपके तंदुरुस्ती के लिए मेरा यीशु क्रूस पर मरा है। For your long life, my Christ died on the cross. आपको दीर्घ आयु देने के लिए मेरा यीशु मसीह क्रूस पर मरा है। Grace provided health and long life. और वहां पे अनुग्रह हमको वहां पे दीर्घ आयु और तंदुरुस्ती दिया है। Hallelujah. हालेलुया। All of us say in English, grace has provided health and long life. अनुग्रह मुझे दीर्घ आयु और तंदुरुस्ती दिया है। What grace has provided, we have to take it by faith. और जो कुछ भी अनुग्रह से दिया गया है हम उसको विश्वास के जरिए लेना चाहिए। Look here, you look here. यहाँ पे देखिए सब लोग। Say, what grace has provided, I'll take it by faith. जो कुछ भी अनुग्रह के द्वारा दिया गया है मैं उसको विश्वास के जरिए लेता हूं। There is no need for you to do anything more. All you have to do is by faith you have to take. आप ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप ये एक ही करना है कि आप विश्वास के जरिए लेना है। And the faith principles you should learn. और जो विश्वास का नियमों के बारे में आप सीखना If चाहिए। you don't understand faith principles, you can't enjoy what the grace has provided.
और विश्वास के नियमों को आप नहीं सीखे तो नहीं समझे तो परमेश्वर का अनुग्रह को आप पाने सकते हैं और आनंद नहीं ले सकते हैं। Grace has provided so much. और अनुग्रह से बहुत ज्यादा दिया गया है You should learn how to take it by faith. और अब ये सीखना है कि आप कैसे विश्वास के जरिए उसको लेना चाहिए। This is a real problem today. आज के दिन में यही एक सच्चाई का समस्या है। The only reason children of God are not enjoying the blessings of God is they don't know how to take it by faith. और यहाँ पे एक ही कारण है जो खुदा के बच्चों लोग क्यों वहां पे समस्या में है बोले तो वो लोग विश्वास के जरिए कैसा लेना बोलकर उनको समझे नहीं, इसीलिए। And they pray, God, give me faith. और वो कह रहे हैं खुदा को, खुदा मुझे विश्वास दीजिए। The Bible says God has given you faith. बाइबल कहता है खुदा ने आपको विश्वास दिया है। You have a faith in you. आपके अंदर आपको विश्वास है। The faith what you have is a God kind of faith. आपके अंदर जो विश्वास है वो विश्वास खुदा के जैसा विश्वास है। The faith what you have in you is a supernatural faith. और जो विश्वास आपके अंदर है वो विश्वास अस्वाभाविक विश्वास है। Supernatural faith will produce supernatural miracles. और अस्वाभाविक विश्वास अस्वाभाविक अद्भुतों को उत्पत्ति करता है। How I can use supernatural faith? और ये अस्वाभाविक विश्वास मैं कैसे उपयोग कर सकता हूँ? First step is पहला कदम ये है you should have a hope. आपको एक आशा रहना चाहिए। Hope comes through the word of God. और आशा परमेश्वर की वचन के जरिए आता है। So I use the word dream instead of hope. और वो निरीक्षा या आशा के बदले में मैं एक शब्द को उपयोग कर रहा हूँ सपना बोल के। The first step to activate supernatural faith is you should have dream. और पहला कदम ये विश्वास आप जो काम में नियम को काम में लाने के लिए आप पहला आपको एक सपना रखना चाहिए। You should dream the word of God. और परमेश्वर का वचन को आप सपना देखना चाहिए। All the promise of God should become dream. हर एक जो परमेश्वर की जो वायदा है उसको आप सपना देखिए। About your husband, about your wife, children, their education, health, wealth, ministry. All the promises should become a dream. और हर एक के लिए, आपके पति के लिए, आपके पत्नी के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके कामों के बारे में, आपके सेवकाई के बारे में, सब कुछ के लिए आप खुदा की वायदों की और देखिए। If dream is not there, you cannot activate faith. अगर वो सपना आपको नहीं रहे तो ये विश्वास काम में लाने के लिए नहीं होता है। Not possible. ये होता ही नहीं। First step is dream. पहला कदम यह है कि आपको सपना देखना पड़ेगा। Dream the word of God. परमेश्वर का वचन को सपना देखिए। Dream the promise of God. और खुदा का वचन का जो वहां पे सपना देखिए। Then what is the second step? और दूसरा कदम कौन सा है? You should look at the dream every day. हर दिन आपके सपने को देखो। You should look at your life. आज के जीवन को देखो। Whether the dream has become real or not. और वो सपना सच्चाई में है क्या नहीं है बोल के। If it has not become real, अगर वो सच्चाई में नहीं दिख रहा है तो speak the dream. और वो सपने को बोलिए, बात करिए। Speak the word of God. और खुदा का वचन को बोलिए। Speak the promise of God. और खुदा का वायदों को बोलिए। You should have a long life dream. और आपको दीर्घ आयु रहता है बोलकर उसको सपना देखिए। And speak it. Keep speaking it. और उसको बोलते ही रहिए, बोलते ही रहिए। Even your songs should be in line with the dream. जो आप गीत गाते हैं वो भी खुदा के वचन के जरिए रहना चाहिए। One day I was teaching about health, blessings and so many things. एक दिन मैं आशीष के बारे में, तंदुरुस्त के बारे में वहां पे सिखा रहा था। I'm supposed to teach that session. I'm going to take now. उस सेशन को अभी मैं अब जाके बोलने वाला था, प्रसंग वहां पे बोलने वाला था। The worship leader was singing. लेकिन वहां पे एक आराधना करने वाला एक गीत गा रहा है। That is neither praise nor worship. Okay. और वो आराधना भी नहीं है, वो स्तुति भी नहीं है। जिंदगी 2 दिन के भाई. That fellow is singing, everybody is clapping hand or enjoying. और वो जिंदगी 2 दिन के है भाई बोल के वो जो व्यक्ति जो गीत गा रहा है सब लोग आनंद ले रहे हैं। And the worst thing is, और उसमें बहुत ही बुराई चीज ये था, all are born again tongue talking believers. सब लोग वहां पे मसीह में नया जन्म पाए हुए लोग थे
और अन्य भाषा बोलने वाले थे। And still the one more worst thing happened is, और एक बुराई चीज ये हुआ था, they all are asking him once more, once more. और वो सब लोग वहां पे पूछ रहे थे और एक बार और एक बार। You know how I'll feel when I take a mic. जब मैं माइक लेने के बाद मुझे कैसा लगता होगा? I said, which Bible tells Zindagi is for 2 days? और कौन सा बाइबल कहता है ये जिंदगी 2 दिन का है बोल के? You all are believers. आप सभी लोग विश्वासी लोग If you हैं। sing it is 2 days, you will live only 2 days. अगर आप ऐसा गीत गाए तो 2 दिन का बोल के आप 2 ही दिन जीते हैं। Then you will die soon. Then your wife will come and ask me why my husband died. और तुम जल्दी ही मरते हैं और पत्नी आके पूछती है कि क्यों मेरा पति जल्दी मर गया बोल I के? said, your husband sang he will live only 2 days. What can I do? क्योंकि आपका पति खाली 2 ही दिन जीता बोल के गीत गाए, इसलिए मैं क्या करूं? We should be very careful what you sing. और हम जो क्या गीत गाते हैं हम बहुत ही जागरूक से रहना पड़ेगा। You should be very careful what you talk. और हम जो बात करते हैं उससे हम बहुत ही जागरूक से रहना You पड़ेगा। should be careful with your jokes. आप जो जोक करते हैं मजाक, वो भी बहुत ही जागरूक से Some रहना people चाहिए। think talking about death is a joke. कई लोग वो जो मरण को मजाक बोल के वो कहते हैं। No, 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 no. नहीं नहीं नहीं, Your tongue has a power. क्योंकि आपके जुबान में शक्ति है। Not only you should speak the word of God, your normal talking should be in line with the word of God. हमारा सामान्य बात करना भी खुदा के वचन के जरिए रहना चाहिए। You keep doing it. और ये आप करते रहिए। I told you, you will come to one stage, you will not fall sick. आप ऐसा एक स्थान में आते हैं, आप वहां पे बीमारी में ही नहीं पड़ते। That is God's will for you. वो खुदा की इच्छा आपके लिए है। But परंतु we are human beings. लेकिन हम मानव लोग हैं, We commit mistake. लेकिन हम लोग गलतियां करते हैं। We do talk negatively. हम लोग नकारात्मक बोलते हैं। We don't sleep properly. हम सही से सोते नहीं हैं। We eat more. हम ज्यादा खाते हैं। Whatever God doesn't want to do, we do. जो खुदा ने नहीं चाहता है वो हम करते हैं। And we land up in trouble. हम वहां पे समस्या में पड़ जाते हैं। Because of we don't do what the God says, we land up in trouble and sickness comes. जो खुदा कहता है वो हम नहीं करते, इसके लिए हम वहां पे समस्या में पड़ते हैं, बीमारी में आता है। We don't realize it, but we do it, we fall sick. और वो सब हम नहीं समझ लेते हैं, हम यही बोलते हैं हम बीमारी में पड़े। But still if you fall sick, अभी भी आप बीमारी में पड़े तो God is good. लेकिन खुदा अच्छा है। You can use faith confession and release healing into your body. और विश्वास की बोलना आप बोल के आपके शरीर को आप चंगाई को प्राप्त कर ले सकते You हैं। can do that now. आप ये अब कर सकते हैं। You can release healing into your body. आपके शरीर में आप स्वस्थता को छोड़ सकते हैं। You have to pray in the name of Jesus. आप यीशु के नाम से प्रार्थना करना चाहिए। You should not be afraid of sickness. आप बीमारी से डरना नहीं चाहिए। You should pray in the name of Jesus. आप यीशु के नाम से प्रार्थना करना चाहिए। I'm saying there's nothing wrong in taking medicine. और दवाई लेने में कुछ गलती नहीं है। There is nothing wrong in going to doctor. और डॉक्टर के पास जाना भी गलत नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। But this is more important. लेकिन ये उससे भी ज्यादा मुख्य है। Prayer is more important. प्रार्थना बहुत ही मुख्य है। Pray in the name of Jesus. यीशु के नाम से प्रार्थना करिए। So last 2 weeks, if you are coming or listen in YouTube, I taught about how Jesus spoke to fig tree, how Jesus taught them to speak to the mountain. और मैं पिछले 2 हफ्ते से अगर YouTube में अगर आप देख रहे हैं तो मैं कैसा वहां पे यीशु मसीह ने विश्वास अंजूर के पेड़ के जरिए से, पहाड़ के जरिए से कैसा सिखा रहा था बोल के मैं आपको कहा था। And Jesus says, whatever you say, you will have it. और यीशु मसीह ने कहा आप जो कुछ भी कहते हैं वो आपके लिए हो जाएगा बोल Say, के। whatever I say, I will have it. जो कुछ भी मैं कहूंगा वो मेरे लिए हो जाएगा। You should speak to the mountain. आप पहाड़ को बात करिए। You should speak to the problem. आपके समस्या को आप कहिए। You should speak to your sickness. आपके बीमारी को आप कहिए। Hallelujah. हालेलुया। Don't tolerate sickness. और वो बीमारी को लेके मत सहो। And don't
think you should live with sickness till death. और ये भी मत सोचो कि आप मरने तक वो बीमारी लेके ही रहते बोल के। Command that sickness to go in Jesus' name. और यीशु के नाम से वो बीमारी निकल जा बोल के आज्ञा दीजिए। Hallelujah. Hallelujah. Then I told you, for every organ you can talk. और उसके बाद मैं बोला था आपके शरीर में जो अंग अंग को आप बात करिए। You can talk, to your head, you will have a head. You can talk to your eyes, you will have a sharp eyesight. You can talk to your ears. You can talk to your heart, liver, kidney. Every organ you can say. You can say what the Lord has done, it will work for you. और हर एक अंगों को आप बोलिए जो प्रभु ने उसके लिए जो किया है, जो सर के लिए आपको बोला था, मैं जो बालों के लिए कहिए बोल के, आपके जो हृदय के बारे में बोला था आप कहिए बोल के, आपके आँख के बारे में आप कहिए बोलकर गया बोला था कि आप वो देखने का तेज रहता बोल के, हर एक लीवर किडनी के लिए आप कहिए जो प्रभु ने किया उसके लिए उसका बोल के। Bible says in Isaiah 58:11, He makes our bones strong. यशायाह 58:11 में कहता है कि हमारा हड्डियों को वो बलवंत करेगा बोल के। Say, my Father makes my bones strong. मेरे पिता मेरे हड्डियों को बलवंत करेगा। Every day your bones will become strong. हर दिन आपका जो हड्डियां है वो वहां पे शक्ति पा लेता है। You should speak to your bones. आपके हड्डियों को आप बोलना चाहिए। You should not talk like others. आप दूसरे लोगों के जैसा बात मत नहीं करना चाहिए। What to do, brother? Become old, That's why joint pain is there. Bones have become weak. Like that, we should not talk. इसके लिए जो लोग वो जो कहते हैं क्या करेंगे क्या कहेंगे ब्रदर, हो गए हमारा उम्र, हमारा हड्डी को शक्ति कम हो रहा है और हड्डियां का दुर्बल हो रहा है बोलकर कहते हैं, ऐसा बोलते बातें बोलने नहीं। So keep listening to my message again and again. It is available for you in Mark 11 chapter. और मेरा जो संदेश को आप बार बार सुनते रहिए, आपको YouTube में रहेगा मार्कुस के 11वां अध्याय के बारे में। Jesus taught the disciples how to speak to fig tree, how to speak the mountains. और यीशु मसीह ने वहां पे सिखाया कि कैसा हम लोग अंजूर के पेड़ को बोलना वो जो क्या किया बोल के, और पहाड़ को कैसा कहना बोलकर वो बोला है। Then he gave one promise. और उसके बाद वो एक वायदा दिया। After giving all the teaching, he gave one promise. सारा बोधना होने के बाद वो आखिरी में एक वायदा को देता है। Mark 11:24. मार्कुस का 11वां अध्याय 24वां This is वचन। a promise you can take for month of August also. और ये वायदा आप अगस्त महीने तक भी लेके जा सकते हैं। Therefore I say unto you, what things soever you desire, when you pray, believe that you receive them and you shall have them. मार्कुस का 11वीं और 24वां वचन। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Therefore I say unto you, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि means he talked about fig tree and mountain. He explained to them clearly how faith operates. Then he is giving the promise. इसका अर्थ यह है कि वो पहाड़ को कैसा कहना और अंजूर के पेड़ से कैसा विश्वास सिखाने के बाद फिर इसलिए बोलकर वो कह रहा है। He is explaining Peter what is man's faith, what is God's faith. और वो पतरस को सिखा रहा है क्या मनुष्य का विश्वास कैसा है और खुदा का विश्वास कैसा है बोल के। After all teaching is over, he is giving one promise. ये सब सिखाने के बाद वो एक वायदा को दे रहा है। Say after me. मेरे पीछे बोलिए। Whatever I desire, I will pray, believe I have received it, then I will have it. जिस किसके लिए मैं आशा करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं विश्वास रखता हूं कि वो मुझे मिल गया बोल के और वो मुझे मिलेगा। If you understand Mark 11:24, all your prayers will be answered. अगर आप मार्कुस का 11वां अध्याय 24वां वचन को आप समझे तो आपके सारी प्रार्थना का उत्तर मिल जाएगा। If you don't understand Mark 11:24, अगर आप मार्कुस का 11वें अध्याय 24वां वचन नहीं समझे तो you will struggle to get answer for prayer. और प्रार्थना को उत्तर मिलने में आप बहुत ही कष्ट निभाते हैं। So he says, whatever you desire. वो कह रहा है
किसको जो आशा रखते हैं, first you should have desire. पहला आपको आशा रखना पड़ेगा। That's why I told you, get your dream ready. इसके लिए मैं आपको कहा था, आपका सपना को आप तैयार करके रखिए। The dream should be your desire. अब वो सपना ही आपकी आशा रहना पड़ेगा। Are you with me? आप मेरे साथ हैं? But we are singing, God, I should not have any desire. आप गीत गा रहे हैं, मुझे बड़ा आशा नहीं है खुदा, I don't want any desire. मुझे कौन सा भी आशा नहीं चाहिए। ಬೇರೇನು ಆಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಎಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ನೋಡೋದು. How much lie it is. कितना झूठ है देखो वो गीत। Hey, really you tell you don't have any desire other than Jesus? आप सच में बोलो, यीशु के अलावा आपको कुछ भी आशा नहीं है क्या? You don't have any desire other than Jesus? यीशु के अलावा आपको कुछ भी आशा नहीं रखते क्या? Simply, all are singing, I will also sing. सब लोग गा रहे हैं, मैं भी गाता हूँ। I am fooling people outside, I will fool God in the church. मैं बाहर लोगों को मूर्ख कर रहा हूँ, मैं कलीसिया में करता हूँ। Hey, no. नहीं नहीं नहीं, Everybody has a desire. हर एक को आशा रहता है। Some desire will be there. कहीं कुछ ना कुछ आशा रहता ही है। And my Bible says, लेकिन मेरा बाइबल कहता my है, God puts a desire. मेरा खुदा ही वो आशा डालता है। So when God puts a desire, what were you singing? कब खुदा आपको आशा डालता है बोले तो, लेकिन हम क्या गा रहे हैं? I don't want any desire, Lord. मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आशा प्रभु। That is hypocrisy. वो कपट बोलते हैं। Hypocrisy has no right to stand before God. खुदा के सामने कपटी लोग खड़े रहने कुछ भी वहां पे योग्यता नहीं है। Philippians 2nd chapter, फिलिपियों का दूसरा अध्याय, verse 13. फिलिपियों का दूसरा अध्याय 13वां वचन। Philippians 2:13. फिलिपियों For it is God who works in you both to will and to do his good pleasure. कहता है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातें को करने का प्रभाव डाले है। Hallelujah. He says God is working in you और to यहाँ पे desire and to do his good pleasure. और उनकी जो आनंद के काम करने के लिए वही आपके अंदर आशा डालता है बोल के। In King James version, he says his will. But if you read NLT, he says desire. He puts desire. किंग जेम्स वर्शन में उस वर्शन में कहता है वो इच्छा बोल के, खुदा की इच्छा बोल के, लेकिन एनएलटी में कहता है कि वो आशा बोल के कहता है। Hallelujah. Say with me, Hallelujah. my Father works in me, puts his desire and ability to do his good pleasure. मेरे खुदा उसकी इच्छा को मेरे अंदर डालता है, वो आशा को डालता है वो करने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Are you with me? आप मेरे साथ हैं? Now coming to long life, you should have a desire to live a long life. आप वहां पे आशा रखना चाहिए कि आप लोग लंबी उम्र जीना चाहिए बोल के। I said you can live more than 120 years. If you don't have desire, then what is the use of prayer? आप वहां पे मैं बोल रहा हूँ 120 साल से ज्यादा जीना चाहिए बोल के, अगर वो आशा ही आप नहीं रखे तो क्या उपयोग है? Or somebody said, what to do 120 years? और कई लोग बोलते हैं कि ये 120 साल लेके मैं क्या करूं? Better to go soon. अच्छा है कि जल्दी जाना। Hey, listen, सुनिए listen. सुनिए, If one father takes a loan, अगर एक पिता कर्जा लिए समझो, 1 crore loan he has taken. 1 करोड़ वो कर्जा लिया समझो, If he dies, अगर वो मरे तो who should pay the loan? और वो कर्जा कौन चुकाना चाहिए? Only son is coming. Why daughter cannot pay? Mind fixed ಇದೆ. ಅಪ್ಪ ಆಸ್ತಿ ಮಗನಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಮಗಳಿಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಆಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಸಾಲ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲ. Is it what mind it is? वो ऐसा सोचते हैं कि बच्चा बेटा ही बोलकर मुंह में आता है, बेटियां बोलकर आते ही नहीं। जब मरने के बाद सब बेटा को ही जाता है और बेटियों को कुछ नहीं आता बोलकर कहते हैं। Not only property, loan also will come to daughter. Okay. और खाली जायदाद ही नहीं है, पूरा जो कर्जा भी वो बेटी के पास ही Now आता listen, है। for example. उदाहरण No, के तौर पे you सुनिए, tell me he is a good father or a bad father? आप कहिए मुझे वो अच्छा पिता है क्या बुरा पिता है?
putting the loan on son's head and dies, what is the use? और वो कर्जा बेटे के ऊपर डाल के बैठना क्या क्या उपयोग Is है he good man or bad man? वो अच्छा व्यक्ति है क्या बुरा व्यक्ति है? If he is a good man, he should clear the loans and die. और वो अच्छा व्यक्ति रहे तो वो वहां पे कर्जा को चुका के वो मरना चाहिए, Yes or no? है क्या नहीं? Now, you know, if you don't preach gospel, it is like you have a loan. अगर आप सुसमाचार नहीं सुनाए तो वो एक कर्जा के जैसे आपको, When you go and preach the gospel, you are clearing loan. अगर कब आप जाके बाहर जाके सुसमाचार सुनाते हैं तो आप वो कर्जे को वहां पे चुका रहे हैं। Say, when I preach the gospel, I clear the debts. कब मैं सुसमाचार सुनाता हूं तो मैं सारे कर्जे को चुकाया जैसा हो गया। Hallelujah. I don't want to keep any loan for my son. मैं मेरा बेटे के लिए कौन सा भी कर्जा नहीं रखना चाहता Make हूँ। sure every village hears the gospel. वहां पे पक्का कर लेता हूँ हर एक वहां पे खेड़े गांव में सुसमाचार रहना चाहिए, Every house hears the gospel. हर एक घर में सुसमाचार रहना चाहिए। Gulbarga over. गुलबर्गा खत्म हो गया, Chittapur over. Shahbaz over. Next I'm thinking Afzalpur, we should clear the loan. चित्तापुर और शाहबाद ये सब कुछ हो गया, अभी हम लोग अफजलपुर कर रहे हैं, वो भी चुकाना है। If you don't preach, it is like loan. When you go and preach, we are clearing the loans. अगर आप नहीं जाके वहां पे बोले तो वो कर्जा ऐसे रहता है, वो अगर बोले तो वो कर्जा चुकाए जैसा होता Then है। one more taluk. और एक उसके बाद और एक तालुक, Then one more district. और उसके बाद और एक जिला, One more state. और एक राज्य। How much loan is there? कितना कर्जा है? The whole world, we have to preach gospel. पूरे संसार को हम सुसमाचार सुनाना है। Still Pakistan people have not accepted Jesus. अभी भी पाकिस्तान लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करे हैं। Nepal people have not accepted Jesus. नेपाली लोग यीशु मसीह को अपना नहीं लिए हैं। To clear all this loan, 120 years is not enough. और ये सब कर्जा चुकाने के लिए 120 साल भी कम पड़ता है। Are you with me? आप मेरे साथ है? Don't try to die soon. जल्दी मरने के लिए प्रयत्न मत करिए। Imagine if you try to die soon, you are keeping the loan for next generation. अगर आप जल्दी मरने के लिए सोच रहे हैं तो आने वाला जनांग संतान के लिए आप कर्जा रख रहे हैं। I respect all the men of God who served before me. और मेरे से पहले जो कोई भी जो खुदा के पासवान जो सेवकाई किए हैं, मैं उनको आदर करता हूँ। But I still am upset with them because they died soon. लेकिन फिर भी उनसे मैं उदास हूँ क्योंकि वो लोग जल्दी ही मरे हैं। If they would have lived more than 120 years, today half of the world would have been covered. क्योंकि वो ही लोग 120 साल अगर जिए तो वो लोग से पूरा आधा संसार में सुसमाचार सुना सकते थे। They left the loan on my head and went. और वो लोग मेरे सर के ऊपर कर्जा डाल के वो लोग गए हैं। I don't want to give for my sons and daughters. और मैं मेरा बेटा बेटी को ये कर्जा नहीं देना चाहता So हूँ। I have desire to live a long life. मुझे आशा है कि मैं कि लंबी आयु से मैं जीता हूँ। Not only I have a desire to have a long life, I have a desire to live a healthy life. खाली दीर्घ आयु में जीता हूँ बोलकर मुझे आशा नहीं है, उसके साथ साथ मुझे तंदुरुस्ती में जीता हूँ बोलकर मुझे आशा है। Only when you are healthy you can serve the Lord. कब आप तंदुरुस्ती में रहते हैं तभी आप से वहां पे सेवकाई कर सकते हैं, Yes or no? है क्या नहीं? And you should have wealth. और आपको संपत्ति रहता है, Money is needed. और उसके लिए पैसा चाहिए। You should have a dream, health, wealth, long life. आपको सपना रखना चाहिए कि तंदुरुस्त के बारे में, संपत्ति के बारे में और दीर्घ आयु के बारे में। Everybody will come and tell, Anna, pray for my son. और सभी लोग आके मुझे बोलते हैं, अन्ना मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करिए, He should change. वो बदलाना चाहिए, वो बदलना चाहिए। Very selfish you are. आप बहुत ही स्वार्थी है। You want only your son to change? क्या खाली तुम आप एक ही बेटे को आप बदलना चाहते हैं? Only one thing, that fellow is drinking. You should stop the drinking enough for me. वो एक ही है ना, वो एक व्यक्ति वो पीने का बंद करे तो वो मेरे लिए काफी है। You are very selfish. हम लोग बहुत ही स्वार्थी है। You should not think he should stop drinking. हम लोग ऐसा नहीं सोचना चाहिए वो पीने का बंद करना बोल के। You should think he comes with you to serve the Lord. और आप ये सोचना चाहिए कि वो आके आपके साथ सेवकाई करता बोल That's what के। the Bible says. वही बाइबल कह रहा है। Say in English, as far as me and my family, we will serve the Lord. मैं
मेरे परिवार खुदा की सेवकाई करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Have a desire. और ये आशा रखी है Have a dream. और ये सपना रखी है। Okay, my honest question. Tell me, your desires is what desire you have is based upon what you got it. और प्रामाणिक तौर से बोलिए, हम लोग क्या पाना है बोल के आपको एक आशा है। What is your desire? No, what desire you have? It's good. How you got it? By looking at whom you got it. और जो आप आशा रख रहे हैं ना, आप किसको देखते हुए वो आशा रखे हैं? You saw somebody better than you. आपसे भी ज्यादा कौन है उसको आप देखे हैं, Then you think you should live like them. और तब आप सोचे हैं मैं उनके जैसा जीना चाहिए। Maybe you saw somebody working as a government servant. शायद हो सकता है आप एक व्यक्ति जो सरकारी नौकरी जो काम कर रहा है उसको देखे होंगे, Then your grandfather said you should also have a government job like him. और तब तो आपके दादा ने कहा होगा आपको तुमको भी बड़े हो कि ये सरकारी नौकरी करना है बोल के, And then you will have the desire. तभी आपको एक आशा आता है। Maybe you saw somebody doing engineering getting a job. You will have a desire. I should also do engineering, get a job. और शायद आप एक इंजीनियर काम करने वालों को देखा होगा, आपको एक आशा आया होगा कि मैं भी इंजीनियरिंग करके मैं एक काम को लेता हूं बोल के। After finishing PUC, we go and ask everybody advice what to do. और पीयूसी खत्म होने के बाद हम सभी लोगों को जाके पूछते हैं आगे मैं क्या करूं बोल के। Everybody will give advice based on their experience. उनके अनुभव के जरिए वही लोग उनका जो बातों को जो सूचना को देते हैं। The desire what they put in you is a very small desire. और जो वो लोग आपके अंदर जो आशा डालते हैं वो बहुत ही छोटा आशा डालते हैं। Bible says. बाइबल कहता है, Come with me to 1 Corinthians. पहला कोरिन्थियों की और आपके बाइबल के Second chapter, दूसरा अध्याय verse 9. 9वां वचन। But as it is written, eye has not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man things which God has prepared for them that love him. परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। Now listen, look here, all of you look here. देखिए इधर, God has prepared a plan for you. आपके लिए खुदा ने योजना को तैयार करके रखा है। Look here means you should look here. आप देखना, इधर बोले तो इधर ही देखना। Not look here and there, okay? Look here. God made a big plan for you. आपके लिए खुदा ने बड़ा योजना रखा है। God has made a big plan for your children. और खुदा ने आपके बच्चों के लिए बड़ा योजना रखा है। What is that plan? और वो योजना कौन सा है? No eye has seen it, no ear has heard it, no heart has received it. और कौन सा भी कान ने नहीं सुनी, कौन सा भी आंख ने नहीं देखी और कौन सा भी मनुष्य के हृदय में नहीं चढ़ा। Says, my Father has prepared such a big plan, no eye has seen it, no ear has heard it, no heart has received it. मेरे पिता मेरे लिए बड़ी योजना तैयार करके रखा है, कौन सा भी कान ने नहीं सुनी, कौन सा भी आंख ने नहीं देखी, कौन सा भी मनुष्य के हृदय में ये नहीं गया। Hallelujah. हालेलुया। See, He is big God. देखो वो बड़ा खुदा है। If He gives what desire He will give. अगर वो आपको आशा देता है तो कैसा आशा वो देता है? Small desire, big desire. क्या छोटा आशा देता है, क्या बड़ी आशा देता है? Exactly opposite you are telling. What your grandfather said, remember? आप वहां पे देखा गए तो विरुद्ध में कह रहे हैं, क्योंकि आपके दादा क्या कहा है? Your grandfather told to have a big desire. आपका दादा सिखाया है क्या आपको बड़ी वहां पे आशा रहना है बोल के? I don't know in English how to tell. In Tamil they say perasai perunashtam. Big desire means big loss. और बड़ी आशा बोले तो बड़ी वहां पे धोखा जैसा, मैं नुकसान। Hello. This is strong in our mind, you see. ये देखो हमारा मन में बहुत ही बल से खड़ा A रहा है। small child will think, I want to go in rocket. Hey, alam beda. Hey, nako.
Why you want to go in rocket? और छोटा बच्चा वहां पे सोचता है मैं रॉकेट में जाना बोल के, लेकिन दूसरे लोग बड़े लोग बोलते हैं नहीं नहीं उतना आशी क्यों? Who are you to stop them desiring? और आप कौन होते हैं उनको आशा रखने में आप रोकते हैं? Who are you to stop the desire? आप कौन होते हैं वो आशा वहां पे वो रुकाने के लिए? You didn't put the desire in their heart. उनके हृदय में आप आशा को नहीं डाले, It is God who puts the desire. वो खुदा जो है वही आशा को डालता है। When God puts the desire, how can you stop it? कब वो खुदा आशा डालता है तो कैसे उसको रुका सकते हैं? Hallelujah. हालेलुया। And not only God prepares a plan, खाली खुदा योजना को बनी तैयार करके नहीं रखा है, He reveals through His Holy Spirit. और वो उनकी पवित्र आत्मा के जरिए वो प्रकट करता है। Your son is not going to do something new. आपका बेटा कुछ तो नया करने के लिए नहीं जाता Your है, daughter is not going to do something new. आपकी बेटी कुछ तो नया करने के लिए नहीं जाती They है, are going to do what God has prepared for them. और उसके लिए जो खुदा ने सिद्धता करके रखा है वही करने के लिए वो लोग जाते हैं। For that purpose, उस उद्देश्य के लिए, God is working in you. उस उद्देश्य के लिए खुदा ने आपके अंदर काम कर रहा He है, puts His desire. वो उसकी आशा को आपके अंदर डाला है, He gives you to ability to fulfill the desire. और वो आशा को वहां पे पूर्ण करने के लिए वो वहां पे सहायता करता है, His word gives you the desire. और उसकी वचन आपको वहां पे आशा देती है। I tell you, if you read Bible, you will have only big desires. अगर आप बाइबल पढ़े तो आपको खाली बड़ी आशा ही रहता है, So this desire should become your prayer point. और ये आशा आपका प्रार्थना का अंश होना पड़ेगा। Hallelujah. Hallelujah. Now let me come to health. अभी अब हम लोग तंदुरुस्ती की तरफ आएंगे। Health is very important. तंदुरुस्ती बहुत ही मुख्य You है। should desire, I will not fall sick. आप वहां पे आशा रखना पड़ेगा मैं बीमारी में नहीं पड़ता हूं बोल के। Hallelujah. हालेलुया। Now he is telling here, you should believe you already received it, then you will have it. और वो कह रहा है आप विश्वास रखिए, आप पहले पा चुके बोल के फिर आप पाओगे बोल के। Now for example, उदाहरण के तौर पे there is a back pain. वहां पे कमर का दर्द है समझो, You are praying. आप प्रार्थना कर रहे हैं, When you are praying, you should believe already back pain has gone. जब आप प्रार्थना कर रहे समय में आप विश्वास रखना चाहिए कि आपका कमर दर्द चल गया बोल के। Like that you should believe, ऐसा आप विश्वास करना चाहिए, then it will go itself. तभी वो जाता है। Hello. Once I was teaching, one lady asked me, why I am coming to you? I have a pain. You are telling me I should believe I don't have pain. और वो एक स्त्री ने आके कही मुझे मैं क्यों आ रहा हूं आपके पास, तुम बोल रहे हैं मैं दर्द है बोलकर मैं आ रहा हूं, तुम बोल रहे तुम वो दर्द गया बोलकर विश्वास रखो बोल रहे, कैसा So, विश्वास करूं? Whenever you read Mark 11:24, to understand Mark 11:24, you should read Ephesians 1:3. और ये मार्कुस का 11वें अध्याय 24वां वचन समझने के लिए जब कभी भी आपको पढ़ने के बाद आप वो समझने के लिए एफिसियों का पहला अध्याय 3रा वचन को आप समझना चाहिए। Come with me to Ephesians 1st chapter, एफिसियों का पहला अध्याय verse 3. 3रा वचन। Blessed be the God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all the spiritual blessings in heavenly places in Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। Oh, listen, I'll explain to it. मैं विवरण करता हूं, सुनिए। Okay, look here, look here. सब लोग इधर देखिए, Don't look here and there, okay? उधर इधर मत देखिए। Now look here. यहाँ पे देखिए, I'll explain with this example, then you'll understand this verse. ये उदाहरण आपको मैं विवरण करता हूं, तब उसके बाद आपको ये समझ में आएगा। Whatever you want, जो कुछ भी आपको चाहिए, maybe marriage, शायद शादी हो सकता or है, child, बच्चा हो सकता है, children's education, और बच्चों का पढ़ाई हो सकता है, job, काम हो सकता है, ministry, सेवकाई हो सकता है, all the blessings.
सारे आशीष, Say all the blessings. सारे आशीषें God already blessed you. खुदा पहले ही आशीष कर दिया है। He has deposited in Christ Jesus. वो मसीह के अंदर वो वहां पे बसा के रखा है। Before he created the world. ये संसार उत्पत्ति करने से पहले That time nobody was there. Only Jesus was there. उस समय में कोई भी नहीं थे, यीशु मसीह एक ही था। Look here. यहाँ पे देखिए, Imagine. It is only illustration. Okay. ये खाली उदाहरण है। This is one box. This is one more box. This is Jesus Christ. This is you. एक डब्बा है, एक डब्बा है, ये यीशु मसीह और ये मैं। Hallelujah. Who is this? ये कौन है? जो से हिंदी में साल क्या? This is ये बॉक्स जोर से बोलना. जोर से बोलो। Okay. Now all your blessings. You name any blessing. Tell anything. What you want from God. आप Quickly. खुदा Don't से क्या क्या चाहिए तुरंत ही बोलिए। don't waste my time. समय को व्यर्थ ना करिए। Car. It is deposited in Christ Jesus. वो यीशु मसीह के अंदर बचा के रखा है। Then what else you want? और क्या चाहिए? Home, house. Okay? घर। It is in Christ Jesus. मसीह के अंदर वो है। Healing. It is in Christ Jesus. तंदुरुस्ती वो भी मसीह के अंदर है। Every I have a desire to tell. I want a girl. I want a husband. I want a wife. You can't tell with your mouth. Okay? हर एक No problem. I'll tell. It is in Christ Jesus. आप सभी को आशा है कि मुझे एक अच्छी लड़की चाहिए, एक अच्छा लड़का चाहिए बोल के आप नहीं बोल रहे, लेकिन फिर भी मैं डालता हूँ, वो भी मसीह में है। Good education. It is in Christ Jesus. अच्छा पढ़ाई वो भी मसीह में है। Pay fees. We need money. It is in Christ Jesus. वहां पे फीस भरने के लिए हमको पैसा चाहिए, वो भी मसीह के All अंदर है। the blessings are deposited in Christ Jesus. सारे आशीष मसीह के अंदर बचा के, यीशु मसीह के अंदर बचा के रखा है। Hallelujah. हालेलुया। Say all the blessings are deposited in Christ Jesus. सारे आशीष मसीह यीशु के अंदर बचा के रखा है। Now the Bible says अभी बाइबल कहता है in John 1:12, as many as received him, he gave them power to become sons of God. और यूहन्ना रचित सुसमाचार पहली अध्याय 12वें वचन में कहता है, जो कोई भी उसको स्वीकार करे है उनको परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार दिया है बोल के। Means you call Jesus into your heart. इसका अर्थ है कि आप यीशु मसीह को आपके हृदय में बुलाया है। How many of you have Jesus in your heart? कितने लोगों के हृदय में यीशु मसीह है? Okay, now listen carefully. अभी ध्यान से सुनिए। What is this box? ये डब्बा क्या है What is inside this? और अंदर क्या है? Sare all blessings. सारे आशीष What हैं। is this? और ये क्या है? Now you have received Christ Jesus. अभी आप मसीह यीशु को अपना लिए हैं। Now where is the blessing? अभी आशीष कहाँ है? It is in Christ Jesus. Christ Jesus is in you. So where is the blessing? वो मसीह के अंदर है, वो मसीह यीशु आपके अंदर है। अभी बोलिए आशीष कहाँ है? Where is healing now? अभी चंगाई कहाँ है? I said, you come to me, I will heal you. नहीं, तुम मेरे पास आइए, मैं तुमको चंगाई करता हूं, मैं बोलता हूं। What you do? आप क्या करते हैं? Give my head. He is telling. मैं जाके सर See, देना। if you are born again believer, healing doesn't come from somewhere. Healing comes from inside. देखिए मसीह में जो नए जन पा लिए है, उसको ऊपर से चंगाई नहीं आता है, उसको उनके अंदर से ही चंगाई आता है। Hallelujah. Hallelujah. If they are not born again, अगर वो मसीह में नई जन पाए नहीं तो the healing power in me, I release it for them. मेरे अंदर वो चंगाई का शक्ति है, मैं उनको छोड़ दिया हूँ। But those who are born again children of God, जो खुदा का जो मसीह के अंदर जो नए जन पाए हैं बच्चे, healing doesn't come from outside. और चंगाई बाहर से नहीं आता है, Healing comes from inside. चंगाई अंदर से आता है। Hallelujah. हालेलुया। So when we pray, कब हम प्रार्थना करते we हैं, say, Father, I thank you. You have healed me. पिता मैं धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे चंगाई कर दिया है। If you do like this, you will have your miracle. अगर ये आप करें तो आपका अद्भुत आपको रहेगा। But usually what we pray, लेकिन देखा गए तो हम कैसा प्रार्थना करते हैं? God heal me. खुदा मुझे चंगाई करो।
Heal me, Lord. प्रभु मुझे चंगाई करो, God, give me, Lord. Give this, Lord. Give that, Lord. No? खुदा मुझे ये दीजिए वो दीजिए। How we go to Kirana shop with a big list like that, we go to God. God, give this, give this, give this, give this. कैसा किराना दुकान में हम वो एक लिस्ट लेके ये देना बोल के हम लेके जाते हैं, वैसे हम खुदा के पास ऐसा लेके जाते हैं। No, just ask me Bible. Ask me Bible. मैं इन सब बाइबल, मैं उनको पूछता हूँ बाइबल दीजिए, Ask me. मुझे बाइबल दीजिए। Did I give or no? उन्होंने बाइबल दिया मुझे क्या नहीं? No, again ask me, give Bible. फिर से मैं उनको पूछता हूँ मुझे बाइबल दीजिए। Now what should I do? मुझे क्या, उनको क्या करना? Chilla ke, cry, मुझे बाइबल दीजिए। cry and ask. ओ मुझे बाइबल दीजिए। Take 10 people and ask. और 10 लोगों को लेके मैं पूछता हूँ मुझे बाइबल दीजिए। Fast and pray. Fast and pray. Translate. और उपवास रहकर आप प्रार्थना करिए। Ask now. अभी मैं उपवास रहकर प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझे बाइबल दीजिए। What should I do now? अभी उन क्या करना चाहिए? Same thing we do. God, give Lord, give Lord, give Lord, give Lord, give Lord. Oh, yeah, give Lord. वैसे ही हम करते हैं। Hey, before you were born, before the world was created, already I blessed you. आप समझिए कि ये आप नया जन्म, आप जन्म होने से पहले, आप ये संसार खुदा उत्पत्ति करने से पहले ही आपको प्रभु ने आशीष कर दिया उससे। You have a healing inside you. आपके अंदर चंगाई है। You have a prosperity inside you. आपके अंदर वहाँ पे उन्नति है। You have a long life inside you. आपके अंदर वहाँ पे दीर्घ आयु है। Now what you should do is, अभी आपको क्या करना है? whatever you desire, जो कुछ भी आप आशा you रखते should हैं, pray and believe you have received it. और आप प्रार्थना करिए, आप विश्वास रखिए आप पा चुके हैं बोल के। Hallelujah. हालेलुया। Now the problem is, समस्या ये है कि we don't know our blessings. हमारे आशीषों को हमको ही पता नहीं है। We don't know what we have inside. हमारे अंदर क्या है बोल को हमको ही पता नहीं है। That is why Philemon says, इसलिए फिलोमोन कहता है, Philemon 1:6. फिलोमोन का पहला अध्याय और 6वां वचन, Philemon 1st chapter. फिलोमोन का पहला अध्याय, That the communication of your faith may be effectual by acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus. और पहला अध्याय 6वां वचन फिलोमोन का, मैं प्रार्थना करता हूं कि विश्वास में तेरा सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो। Hallelujah. हालेलुया। Communication of your faith may be effectual by acknowledging every good thing which is in you in Christ Jesus. यहाँ पे कहता है कि विश्वास में तेरा सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो। Say after me, I will acknowledge every good thing which is in me in Christ Jesus. मैं पहचान लेता हूं सारी भलाई चीजें मेरे अंदर मसीह के अंदर है। How you will acknowledge? कैसा आप पहचान लेते हैं? By reading the Bible. बाइबल वचन पढ़ने के द्वारा। We don't want to touch Bible. हम बाइबल को छूना नहीं चाहते हैं। We live in lack, debt, sickness, everything. हम लोग बीमारी में, कमीपन में और कर्जा में हम लोग जीते हैं। And we are very busy in that. और उसमें ही हम बहुत ही व्यस्त रहते We हैं। don't have time. If you have a time for this, you will acknowledge it. If you acknowledge it, you will possess it. अगर आपको समय रहे तो आप पहचान लेते हैं, आप पहचान लिए तो आप उसको स्वाधीन में कर लेते हैं। Close your Bibles. Look here. आपके बाइबल को बंद करके इधर देखिए। All of you look here. सब लोग इधर देखिए। One illustration I'll tell and close. Okay? एक उदाहरण मैं आपको देख के समाप्त करता हूँ। Close Bible. No? आपके बाइबल को बंद रखिए। Don't write also. This is an only example. Okay. नोट्स मत लिखिए, खाली उदाहरण है। You know, there were some beggars sitting outside some place begging. और कई भिखारी लोग वहाँ पे बाहर वहाँ पे बैठ के वो लोग भीख मांगते रहते हैं। Suddenly one lawyer came, तुरंत ही एक वहाँ पे वकील आता है met one beggar and said, your grandfather left property for you. और वो आके तुरंत ही कहता है उस एक भिखारी को,
तुम्हारा जो दादा है ना आपके लिए जायदाद रख के गया है। There is a deed here. It is written here. Crores and crores of rupees are there. और यहाँ पे वो पत्र है, वहाँ पे उसके अंदर करोड़ों में पैसा है, पैसे में रहता है वो। These beggars, they'll be so alert. No, they will not miss any people. और ये जो भिखारी है ना, बहुत ही वो लोग ध्यान से जागृत से रहते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति को भी वो खोना नहीं Their चाहते। eyes will be only on the chiller. What they are going to get. They have money. What they are going to get. और वो उनका जो जो आंख जो रहता है, इनसे मैं मुझे कितना पैसा मिलता है उसके If ऊपर रहता है। anybody talks only talking without money, they will not even look at them. और खाली बातें रहे, पैसा नहीं तो उनको देखते भी नहीं वो लोग। This lawyer is talking with paper. Don't disturb me. It's my business time. वो ये वकील आके कह रहा है तुझे ऐसा ऐसा है बोले, तो वो भिखारी उनसे कह रहा है मुझे वहां पे डिस्टर्ब मत करिए, He's very busy begging. क्योंकि वो भीख मांगने में बहुत ही वहां पे व्यस्त है। Hello. At last, that lawyer has to scream and shout and take his attention and said, "Hey, you are not a beggar. You are crorepati." और आखिरी में कितना भी बोलने के बाद वो वकील क्या करते हैं, उसको हिला हिला कर, ए तूने करोड़पति है, तू भिखारी नहीं है बोलकर बोलता है। Then this fellow saw the deed. और उसके बाद वो पत्रों को देखता है। Then this fellow is unpad. He cannot read the deed. लेकिन ये व्यक्ति जो अनपढ़ रहता है और वो पढ़ भी नहीं सकता है, But he knows crores of rupees are there. लेकिन उसको पता लग गया कि उसको करोड़ों में पैसा है। So if he knows to read, is better. लेकिन वो अगर वो समझता है तो वो पढ़ना अच्छा है। What do you think he will do? अब उन्होंने क्या करता बोल के आप सोचते हैं? First he will go to tuition. He will learn Kannada first. पहला वो ट्यूशन और को हिंदी। जाके कन्नड़ा करता है, वहाँ पे हिंदी सीखता है, He wants to see every line. क्योंकि हर एक वहाँ पे लाइन को देखना चाहता है। He wants, if he cannot see, he will have a lens and read it. और वो खाली लेंस लेके वो देखने के लिए, वो देखने के लिए Because चाहता है, he knows so much is there inside, he wants to take it. क्योंकि बहुत कुछ अंदर है, क्योंकि वो पाना चाहता है। Bible is like a title deed. और ये बाइबल जो है ना, वो वैसा बड़े अक्षर से जैसे देखना जैसा ये रहता है, Title deed, Asti Patra. आस्ति पत्र जैसा रहता है। Say, this is my title deed. ये मेरा जायदाद का पत्र है, All that belongs to me there inside. ये इसके अंदर जो कुछ भी है वो मुझे संबंधित है। Start reading. और सपना देखना शुरू करिए, Start reading it. और इसको पढ़ना शुरू करिए, And take it and thank God. Lord, thank you, you have given me this. और ये लेके खुदा को धन्यवाद करे, खुदा ये तूने मेरे लिए किया है। And what promise Bible has for your children? और आपके बच्चों के लिए कौन सा वायदा बाइबल कहता है? It says God will set your children high above all the nations of the earth in name, in praise and in honor. क्योंकि बाइबल कहता है आपके बच्चों को खुदा ने सारे देश के जो नामों से आपका बच्चों का नाम ऊपर रहता है, वो आदर में और वो संपत्ति में बोल के। Say after me. First we'll tell for yourself, then you can tell for children. Okay, tell after me. My Father will set my name high above all the nations of the earth in name, in praise and in honor. मेरे पिता मुझे सारे देशों में मेरा नाम ऊपर रखेगा, आदर में, नाम में, स्तुति में। The same thing you declare for your children. और आपके बच्चों के लिए Same thing declare. वैसा ही आपके बच्चों के लिए घोषणा Say after me. करिए। My Father will set my children high above all the nations of the earth in name, in praise and in honor. मेरे पिता मेरे बच्चों को सारे देश में से जो नाम है उनसे नाम से भी ऊपर रखेगा, आदर में, स्तुति में, नामों में। Simple meaning, you will become world famous. एक साधारण का एक उदाहरण बोले, एक अर्थ बोले तो आप पूरा संसार में आपको पहचान लेंगे, फेमस हो जाएंगे। Nobody will understand. Famous, everybody understand. Again, I have a problem here. फिर से मुझे यहाँ पे I समस्या can है। preach it only in my church. खाली ये मेरी कलेक्शा में सिखा सकता हूँ। One day I was same
promise I was about to preach. यही वायदा मैं वहां पे देने के लिए जा रहा था। I was just going, getting ready. They were singing the song. Give me no name, O God. Give me no fame, O God. और यही वायदा मैं बोलने के लिए जा रहा था तैयार होके, और गीत गा रहा था वहां पे, मुझे कौन सा भी नाम नहीं चाहिए प्रभु, मुझे कौन सा भी स्तुति नहीं चाहिए प्रभु। Hello. God said, I will give. They are singing, you don't give. खुदा बोल रहे हैं मैं देता हूँ, लेकिन वो गीत गा रहे हैं नहीं चाहिए बोल के। It may suit your emotion. आपके भावना को वो तोल सकता है। I'll tell you something. मैं आपको एक बोलता हूँ, Christian life is not sannyasi life. मसीह का जीवन सन्यासी का जीवन नहीं है। It's not sadhu's life. Leave everything. वो साधु के जैसा नहीं रहता है सब कुछ छोड़ना बोल के। People think becoming sadhu is holy. लोग ऐसा सोचते हैं कि साधु बन के रहना वो पवित्र बोल के। And church believes you should live like sadhu. और कलीसिया वहां पे विश्वास करते हैं आप साधु के जैसा ही रहना। God says, I am putting desire, I am lifting up. You say, don't want. खुदा चाहता है कि मैं आशा डाल रहा हूँ, मैं ही उसको डाल रहा हूँ, और तू कह रहा है नहीं बोल के। Hallelujah. हालेलुया। Are you with me? आप मेरे The साथ हैं? reason I'm saying is, nowadays you listen songs, everywhere songs are available. मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप सभी को वहां पे गीत वहां पे है, You should not listen to every song, sing every song, and और- land up in trouble. और सारे गीतों को गा के आप लोग वहां पे समस्या में नहीं पड़ना चाहिए। And come to me and said, I am praying, it is not working. और मुझे आके नहीं बोलना चाहिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ मेरे लिए नहीं हो रहा है। Hallelujah. God is a good God. और खुदा अच्छा खुदा है। One more time, tell after me. फिर से मेरे पीछे कहिए, My Father has already blessed me with all the blessings in Christ Jesus before the foundation of the world. मेरे पिता सारा आशीषों को मसीह यीशु के अंदर पहले ही डाल के रखा है, ये संसार उत्पत्ति होने से पहले ही। My Father has already blessed me with long life, good health, sickness-free life in Christ Jesus before the foundation of this world. मेरा पिता मसीह के अंदर दीर्घ आयु का आशीष को डाला है, तंदुरुस्ती को डाला है मसीह के अंदर इस संसार उत्पत्ति होने से पहले। Hallelujah. Now all you have to do is what you have to thank God. आपको क्या है उसको लेके खुदा को धन्यवाद करना चाहिए। आप Miracles will happen in your life. आपके जीवन में अद्भुत होता है। Amen. Shall we all stand up? हम and सभी pray? लोग खड़े हो जाएंगे। Thank God for all the blessings. सारे आशीष के लिए हम It धन्यवाद is करेंगे। in you in Christ Jesus. वो आपके अंदर है मसीह में। Father, we thank you for eyes of understanding. Open our eyes of understanding. खुदा हमारी समझ की आंखों को खोल दे, They will have a big desires. उनको बड़ी आशा रखना चाहिए। Every scripture should become their desire. हर एक वचन उनकी आशा रहना पड़े, They should pray their desires. और वो आशा के लिए वो प्रार्थना करते They हैं, should believe they already have it. और वो लोग विश्वास रखते हैं कि पहले वो लोग पाप They पाले will- चुके हैं बोल They के, will possess all the blessings. और वो सारे आशीषों को वो स्वाधीन कर लेते Your हैं। name will be honored and glorified. आपका नाम ही वहां पे आदर और महिमा पाना चाहिए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen.